إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ہر طرح کی تعریف بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک مربی اور پالنہار ہے. انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دین ملی ساتھیوں، نوجوانوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھی ہیں اور ان آیات کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے والدین کے تئیں اولاد کی ذمہ داریاں. اس سے قبل والے مہینے میں نے آپ کے سامنے اولاد کے تئیں والدین کی ذمہ داری کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی تھی. میں نے مناسب سمجھا کہ اولاد کے اوپر والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ تو ہو چکی ہیں، لیکن اسی طریقے سے اولاد پر والدین کی ذمہ داری کیا ہے اس کو بھی بتا دیا جائے. دوستو، اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد. اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق کے بارے میں یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ اگر اللہ کے حقوق میں بندے سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے، کوئی کمی ہوتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے کرم و فرمان پر ہے اور اس کے احسان پر ہے. اگر چاہے تو اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو نافرمانی کرنے کی بنیاد پر اسے سزا دے. لیکن حقوق العباد کے بارے میں یہ بات بھی ہماری ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اگر حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو وہ گناہ
उस वक्त तक मुआफ नहीं हो सकता है जब तक कि वो इंसान मुआफ ना कर दे जिसके ताल्लुक से कोताही हुई है, जिसके ताल्लुक से कमी हुई है। हुकूकुल इबाद की एक लंबी तफसील है, उनमें से वालिदैन का हक ये सबसे मुकद्दम है। जिस तरीके से औलाद, बच्चे और बच्चियां ये चाहती हैं कि वालिदैन हमारी अच्छी तरीके से परवरिश करें, हमारी अच्छी तरीके से देखभाल करें, हमें बेहतरीन तालीम दें और हमारे लिए बेहतरीन रास्ता हमवार करें, खुशगवार माहौल हमारे लिए बनाए, ताकि हम अपनी इस दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में कामयाब हो सके। ऐसे औलाद के ऊपर वालिदैन की भी जिम्मेदारियां हैं। दोस्तों, वालिदैन का क्या हक है, वालिदैन की क्या अहमियत है अल्लाह की निगाह में, शरीयत की निगाह में, आप उसको ऐसे समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात में अपनी इबादत का हुक्म देने के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी के बयान फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना कुल तआलू अत्लू मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना। मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत का हुक्म दिया और अपनी इबादत का हुक्म देने के फौरन बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद की और बार बार ये कहा है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। दोस्तों, वालिदैन का मकाम, मर्तबा इतना बड़ा है कि एक बेटा या एक बेटी या औलाद पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करती रहे तब भी उसके हक को अदा नहीं कर सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा कि बहुत थोड़ा हक अदा हो सकता है, तो वो ये है कि कोई इंसान अपने वालिदैन को गुलाम पाए और उनको खरीद करके और आजाद कर दे, तब जा करके थोड़ा बहुत हक अदा हो सकता है बच्चों की तरफ से और औलाद की तरफ से, वरना ता जिंदगी खिदमत करती रहे औलाद, वालिदैन की खिदमत वो नहीं कर सकती या इस तरीके से उनका हक वो अदा नहीं कर सकती है किसी भी हालत में। तो वालिदैन का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है और इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। हत्ता कि अगर वालिदैन काफिर हैं, मुशरिक हैं, तो दुनियावी एतबार से भी उनके साथ हुस्न सलूक करना है, उनकी खिदमत करनी है, उनको कपड़ा देना है, उनके इलाज और मुआलजे के लिए पैसे देना है, इसी तरीके से हर एतबार से उनकी खिदमत करनी है। हाँ, अगर वो हमें और आपको शिर्क पर उभारते हैं तो उनकी बात वहां पर नहीं माननी है, कुफ्र नहीं करना है, वरना दुनियावी एतबार से उनके साथ हमेशा उनकी खिदमत करती रहनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर कहा वइन जहादाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन वला तुतिहुमा वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा। अगर वालिदैन तुमको मेरे साथ शिर्क करने के लिए उभारे तो उनकी बात नहीं माननी है, लेकिन अल्लाह कहता है कि वसाहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, दुनिया के अंदर उनके साथ भलाई करनी है। बीमार हो जाए तो ला के दवा देनी है, कपड़े नहीं है तो कपड़े देने हैं, इसी तरीके से हर एतबार से उनकी खिदमत करनी है, खाना नहीं है तो उसका इंतजाम करना है, भूखे उनको नहीं सोने देना है, गरचे वो काफिर और मुशरिक ही क्यों ना हो। इतना बड़ा मकाम है कि शिर्क की हालत में जिंदगी गुजारने वाले, कुफ्र की हालत में जिंदगी गुजारने वाले वालिदैन के साथ भी उनकी खिदमत करनी है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी जरूरियात को पूरा करना है।
दोस्तों, वालिदैन की खिदमत अगर कोई इंसान करता है तो उसका सवाब क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा कि नमाज के बाद वालिदैन की खिदमत ये सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा है। वालिदैन की खिदमत जिहाद के बराबर सवाब मिलता है। वालिदैन की खिदमत से और उम्र के अंदर बढ़ोतरी होती है, रिज्क के अंदर ज्यादती होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र के अंदर ज्यादती की जाए, उसकी रोजी के अंदर कुशादगी की जाए, तो वालिदैन के साथ उसने सलूक करे, उनकी खिदमत करे, उनकी देखभाल करे। दोस्तों, वालिदैन ये जन्नत में जाने का जरिया है, जहन्नम से बचाने का जरिया है। और इसी तरीके से अगर हम वालिदैन की खिदमत करते हैं, वालिदैन की रजामंदी अल्लाह की रजामंदी है, वालिदैन की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। अगर हम अपने माँ बाप को नाराज रखते हैं तो याद रखें कि अल्लाह भी हमसे नाराज रहता है। लेकिन ये नाराजगी किस चीज में? जायज उमूर में, नाजायज उमूर में नहीं। शरई तौर पे अगर नाराज है तो ऐसी सूरत में फिर अल्लाह ताला भी नाराज होता है, और अगर वालिदैन खुश है तो अल्लाह ताला भी खुश होता है। इसके बिलमुकाबिल आप देखिए कि अगर इंसान नाफरमानी कर रहा है एक औलाद पर, एक बेटे पर, एक बेटी पर, वालिदैन की क्या जिम्मेदारियां, क्या करना चाहिए? पहली चीज उसने सलूक करना, दूसरी चीज वालिदैन की खिदमत करनी है, तीसरी बात उनकी नाफरमानी से बचना है और उन्हें उफ तक नहीं कहना है, इसलिए कि उनकी नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है। एक शक्ल में अगर वालिदैन बिदात करने के लिए कहते हैं, वालिदैन शिर्क की ओर उभारते हैं, शरीयत के मुखालिफ कोई काम करने के लिए कहते हैं, वहां पर अगर औलाद नाफरमानी करती है तो ऐसी सूरत में फिर कोई पकड़ नहीं। इसके अलावा हर हाल में वालिदैन की बात को मानना है, उनकी इताअत करनी है, उनकी फरमाबरदारी करनी है, उनके साथ उसने सलूक करना है, उनकी खिदमत करनी है और उनकी नाफरमानी से बचना है। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला किया, अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करोगे और वालिदैन के साथ उसने सलूक करोगे। अल्लाह ने फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, तो उनको उफ तक नहीं कहना। उफ, साहिब तफसीर लिखते हैं कि उफ कहते हैं नाखून के गंदगी को, नाखून के मैल और कुचैल को। इंसान नाखून के अंदर बैठी हुई गंदगी को जब निकालता है तो फूंकता है ताकि वो गंदगी, वो मैल कुचैल नाखून से निकल जाए। कहा उसको ऐसे भी नहीं कह सकते उफ, यानी जिस तरह आप फूंकते हैं कि ये मैल कुचैल नाखून से निकल जाए, उस तरह भी आप वालिदैन को नहीं कह सकते हैं। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा, उफ भी नहीं कह सकते, उनको डांट भी नहीं सकते। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे भली बात कहनी है, प्यार से बोलना है, नरमी से बोलना है, अच्छाई से बोलना है। वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, अल्लाह कहता है कि उनके लिए रहमत के बाजू को बिछा दो। मुफस्सिरीन लिखते हैं इसकी तफसीर करते हुए, कहा कि वक़्फ़िद लहुमा जनाह दुल की तफसीर करते हैं, कहा कि जैसे मुर्गी होती है, वो अपने चूजों को लेकर के चुनाती रहती है, चुगाती रहती है, और उसके बाद में जैसे ही अपने बच्चों के ऊपर किसी जानवर के हमले का डर होता है, फौरन वो आवाज लगाती है और अपने दोनों परों के नीचे अपने बच्चों को और अपने चूजों को समेट लेती है ताकि हमारे बच्चों को कोई तकलीफ ना होने पाए। कहा ऐसे ही जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं और ज्यादा उम्र को पहुंच जाएं, तुम्हारे मुहताज हो जाएं, तो ऐसी सूरत में फिर उनको भी तुम अपने बाजू में ले लो। जनाहद्दुल मिनर रहमा, रहमत के बाजू को उनके लिए बिछा देना है।
हर हाल में उनकी खिदमत करनी है। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ करते रहना है कि ऐ हमारे रब तो इनके ऊपर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने हमारी बचपन के अंदर क्या है परवरिश की है। ये कुरान का फरमान है, कुरान का हुक्म है कि उनको उफ तक नहीं कहना है। दोस्तों, वालिदैन का मकाम और मर्तबा बहुत ऊंचा है। जैसा मैंने कहा कि कोई इंसान पूरी जिंदगी उनकी खिदमत करता रहे तब भी उनके हक को अदा नहीं कर सकता। एक तरफ अगर वालिदैन की खिदमत करने पर बहुत सारी फजीलतें हैं तो उनकी नाफरमानी करने पर अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बहुत सारी वईदें भी आई हुई हैं। अगर कोई इंसान वालिदैन की नाफरमानी करता है, जानते हैं रहमत इलाही से दूर हो जाता है और वो जहन्नम का ईंधन बन जाता है। सहाबी रसूल बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के ऊपर चढ़े। पहले मिंबर के ऊपर जब कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरे के ऊपर कदम रखा तो कहा आमीन, तीसरे के ऊपर कदम रखा तो कहा आमीन। खुतबा खत्म हो गया। आपने अपने सहाबा को नसीहत की और ये आपका तरीका आम हालात के खिलाफ था। जब आप खुतबे से फारिग हुए, नमाज से फारिग हुए तो सहाबे कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज मैंने आपको एक नया अमल करते हुए देखा है कि आपने पहले मिंबर के ऊपर कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरे पे आमीन कहा, तीसरे के ऊपर आमीन कहा। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीर फरमाई और कहा कि सुनो, हजरत जिब्राइल आए और उसके बाद में कहा, जब मैंने पहले उसके ऊपर कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा कि जो रमजान के महीने को पाले और अपनी बख्शिश ना करवा दे तो उस पर अल्लाह की लानत होती है और अल्लाह उसको अपनी रहमत से दूर कर देता है। ऐ नबी, मैं दुआ करता हूं और आप उसके ऊपर आमीन कहिए। तो मैंने आमीन कही। दूसरे उस पर जब मैंने कदम रखा तो कहा कि जिब्राइल ने कहा कि जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाले या उनमें से किसी एक को और फिर उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल ना कर ले तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को जहन्नम के अंदर दाखिल करता है, अपनी रहमत से दूर करता है। ऐ नबी, आप आमीन कह दिए। मैंने आमीन कही। तीसरे उस पर जब मैंने कदम रखा तो जिब्राइल ने कहा कि ऐ नबी, आपका जब जिक्र आए और कोई आदमी आपके ऊपर दरूद ना भेजे तो ऐसे इंसान को मैं अपनी रहमत से दूर कर देता हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं मैंने आमीन कहा। आप अंदाजा लगाइए कि फरिश्तों में सबसे अजीम फरिश्ता जिब्राइल, नबियों में सबसे अजीम नबी, खातमुन नबीयीन, खातमुल मुरसलीन, शाफिउल मुज़निबीन, तमाम बहुत सारी सिफातें, ऐसा नबी यानी सबसे अजमत वाला फरिश्ता दुआ कर रहा है और सबसे अजीम नबी उसके ऊपर आमीन कह रहा है। तो कबूल नहीं होगी? जरूर कबूल होगी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जो अपने वालिदैन को में से दोनों को या उनमें से किसी एक को पाए और उसके बाद भी फिर उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल कर ले, अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अपनी रहमत से दूर कर देता है। वालिदैन की नाफरमानी कबीरा गुनाहों में से, और कबीरा गुनाहों के ताल्लुक से आप बार बार सुनते आए हैं कि जब तक इंसान तौबा ना कर ले तब तक वो माफ नहीं हो सकते हैं, और अगर उसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है तो जब तक वो बंदा माफ नहीं कर देता है तब तक वो गुनाह माफ नहीं हो सकता है। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ने लानत भेजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लअनल्लाहु मन लअन वालिदैहि, उस शख्स के ऊपर अल्लाह की लानत होती है जो अपने वालिदैन के ऊपर लानत भेजता है, अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करता है, उनको तकलीफ देता है, उनको सताता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा आदमी मलऊन है। इब्न अब्बास की रवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा, मलऊन मन सब्बा अबाहु, वो शख्स मलऊन है जो अपने वालिदैन को बुरा भला कहे। मलऊन मन सब्बा उम्महु, वो शख्स मलऊन है जो अपनी माँ को बुरा भला कहे।